مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں وہ راستہ دکھایا، اس نے وہ اپنا وعدہ پورا کر دیا، اس نے پاک روح سے ہمیں بھر دیا، اس نے ہمارے قدموں کو آسمانی راہ دکھا دی۔ اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے، کیونکہ وہی زندہ اور شافی ہے۔ اسی کے خون بہانے سے ہم نے نجات اور رہائی پائی ہے۔ پریز دا لارڈ۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں، جو مرکز کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 27 آیات میں یوں محکوم ہے، اور یسوع نے ان سے کہا، تم سب ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چراوے کو ماروں گا اور بھیڑیں پرگندہ ہو جائیں گی۔ پاک کلام پڑھے جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو۔ یہاں پر خدا اپنے بارے میں کہتے ہیں، کیونکہ ہم نے جس طرح دیکھا کہ یسوع ہی ہمارا چراوا ہے، اور وہی ہمیں ہری چراگاہ پہ بٹھاتا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ اگر ہم دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 1 سے 4 تک میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ لکھا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو کوئی دروازے سے بھیڑ خانے میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور کسی طرح سے چڑھ جاتا ہے، وہ چور اور ڈاکو ہے، لیکن جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑیوں کا چراوا ہے۔ اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے، اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں، اور وہ اپنی بھیڑوں کو اپنے نام بلا کر باہر لے جاتا ہے۔ جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے، اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں، کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں۔ پریز دا لارڈ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند ہمارا چراوا ہے، اور ہم اس کی بھیڑیں ہیں جو اس کے کلام پر چلتی ہیں، جو اس کی مرضی پہ چلتی ہیں، جو اس کے حکموں کو مانتی ہیں۔ اور پھر کلام مقدس میں محکوم ہے کہ خداوند ہمیں ناموں سے پکارتا ہے، کیونکہ اس نے ہمارے نام اپنی ہتھیلیوں پر لکھے ہوئے ہیں۔ اور جب ہم خدا کی آواز پہچانتی، اس کی بھیڑیں اس کی آواز پہچانتی، ہم سب بھیڑیں اپنے باپ کی آواز پہچانتے ہیں۔ پریز دا لارڈ۔ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند نے اپنے شاگردوں کو، اپنے جو خاص فرما بردار شاگرد تھے، انہیں آنے والی ساری باتوں سے آگاہی دی تھی کہ کیا کیا ہونے والا ہے، جس طرح خدا کے دفن کی تیاری ہو رہی ہے۔ اور پھر خدا نے یہاں پہ کہا کہ میں اچھا چراوا ہوں، اور اچھے چراوے کی ہم نے مثالیں بھی دیکھیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھیں خداوند کہتے ہیں کہ اگر تم اس لیے یقین نہیں کرتے کہ میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور مجھے جانتی ہیں، اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشوں گا، وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھینے گا نہیں۔ اور یسوع نے جواب دیا کہ میں نے تم کو باپ کی طرف سے بتیرے اچھے کام دکھائے ہیں، ان میں سے کسی کام کے سبب سے مجھے سنسار کرتے ہو؟ یسوع نے انہیں جواب دیا، تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا کہ میں نے کہا کہ تم خدا ہو؟ جب تک کہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا، اور کلام مقدس کا باطن ہونا ممکن نہیں۔ پریز دا لارڈ۔ ہمیں خداوند نے خریدا ہے، اس نے ہماری قیمت ادا کی۔ پھر یہاں خداوند دوسری آیات میں یوں لکھا ہے کہ مگر میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہوں۔ گلیل کیا ہے؟ گلیل میں لکھا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں یسوع کا گلیل میں خدا کی بادشاہی کا کام کرنا، خدا باپ نے، یسوع نے یہاں خدا کے نام کو جلال دیا، بہت سارے لوگوں کو شفا دی، اور بہت سارے معجزات ہوئے۔ یہ یردن اور گلیل کی جھیل کے مغرب کے علاقے کو گلیل کہتے ہیں، یا یہ ماہر گیروں کا گاؤں تھا جو گلیل کی جھیل کے شمالی حصے میں واقع تھا۔ پریز دا لارڈ۔ اور یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 45 اور 46 کے آیات میں دیکھتی ہوں کہ فلپ نے نیتن سے مل کر اس سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا ہے، وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ نیتن نے اس سے کہا، کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ فلپ نے کہا، چل کر دیکھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا یسوع ناصری ناصرت کا رہنے والا تھا۔ پریز دا لارڈ۔
बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आता जाता रहेगा और चरावा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ, और कौन सी ज़िंदगी पाएँ? कसरत से पाएँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी के मरकज़ की हम देख रहे हैं 28 आयत में, जबकि खुदावंद यीशु मसीह ने पेशन गोई की, पहले ही बताया कि जो मुश्किल का वक्त आने वाला है। पतरस के लिए खुदा ने नबूवत की कि तू मेरा 3 दफ़ा इनकार करेगा। हम इसकी 29 आयत को मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। पतरस ने उससे कहा, सब ठोकर खाएंगे लेकिन मैं ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तू आज ही रात मुर्ग के 2 बार बांक देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। लेकिन उसने बहुत ज़ोर देकर कहा कि अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी इनकार हरगिज़ ना करूँगा। इसी तरह सब ने कहा, आमीन। इसी तरह हम देखें हैं पतरस याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर नहायत हैरान और बेकरार होने लगे और उनसे कहा कि मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई। गम तुम यहाँ ठहरो और जागो और दुआ करो। और वो थोड़ा आगे बढ़ा और ज़मीन पर गिर कर दुआ करने लगा कि अगर हो सके तो ये घड़ी मुझसे टल जाए, और कहा, ए अब्बा, ए बाप, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस प्याले को मेरे पास से हटा, तो भी जो मैं चाहता हूँ वो नहीं, बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। आमीन। हमारे खुदावन ने दुख उठाने से भी पहले अपने बाप से दरख्वास्त की कि खुदा बाप, अगर तू चाहता है तो तू सब कुछ कर सकता है बाप, लेकिन मेरी नहीं, तेरी मर्ज़ी पूरी हो। और फिर वो शमौन के साथ और उसके शागिर्द जो थे एक घड़ी भी ना जाग सके, तो वो फिर खुदावंद आया और उसने कहा, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैक है मगर जिस्म कमज़ोर है। वो फिर चला गया और वहीं बैठ कर कहा कि दुआ करो। फिर कहा, पर लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको बड़ी नींद आ रही थी, वो सो रहे थे और उनकी आंखें बंद हो रही थी नींद से, और वो ना जाग सके। और फिर खुदावंद तीसरी बार आकर उनसे कहता है कि सोते रहो, अब आराम करो, क्योंकि बस वक्त आ पहुंचा है। देखो, इब्ने आदम गुनाहों के हवाले किया जा रहा है, उठो चलो, और देखो मेरा पकड़वाने वाला नज़दीक आ पहुंचा है। तो खुदावन ने ये पेशन गोइयाँ पहले ही कर दी थी कि ये सब कुछ होने वाला है। और उसने क्या, बाप ने क्या किया, अपनी नहीं बल्कि बाप की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए खुदा बाप के पाक हुक्मों को माना और उसकी मर्ज़ी को और उस कफ़ारे को लिए जो खुदा को दिया गया था पूरा करने के लिए पूरे तौर पर, कामिल तौर पर तैयार हो गए। और वो वक्त आ गया और उसका पकड़वाने वाला क्या हुआ, आ गया। उसके पकड़वाने वाले के साथ एक बड़ी भीड़ थी जो तलवारों और लाठियों लिए हुए सरदार, काहिन और फुकियों और बड़े बुजुर्गों की तरफ से आ पहुंची। और उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये निशानी दी थी कि मैं जब उसका बोसा लूं तो तुम उसे पकड़ लेना। और पुराने ज़माने में ये रवायत थी कि लोग आपस में मिलते थे और एक दूसरे के गाल का बोसा लेते थे या हाथों पे बोसा लेते थे। तो उन्होंने ऐसा ही किया और उन्होंने क्या किया, उसके पास आकर उसके ऊपर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। और इनमें से जो पास खड़ा था एक ने तलवार खींचकर सरदार काहिन के नौकर पर चला दी और उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम तलवारों और लाठियां लेकर मुझे को पकड़ने आए हो? मैं तो हर रोज़ तुम्हारे पास हैकल में तालीम दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा। ये इसलिए हुआ कि वो नविश्ता पूरा हो। इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। हालेलुया। खुदा ने पहले ही पेशन गोई कर दी थी कि ये सब कुछ होगा और ऐसा ही हुआ कि और फिर उनमें से एक जवान था जो खुदा के पीछे चल रहा था, वो भी जो मुहिन चादर ओढ़े हुए था, और वो उसके पीछे हुआ। लोगों ने जब उसे पकड़ा तो वो चादर को ही छोड़कर भाग गया।
इस तरह यूहन्ना की अंजील उसका 16वां बाब उसकी 32 और 33 में यूं माकूम है, लिखा है कि देखो वो घड़ी आती है बल्कि आ पहुंची कि तुम सब पर गंदा होकर अपने अपने घर की राह लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि बाप मेरे साथ है। और मैं तुमसे ये बातें इसलिए कहीं कि तुम मुझे में एतमाद पाओ। दुनिया में मुसीबतें उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो कि मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा खुदावन दुनिया पे गालिब आ गया, उसने अपनी जान देकर हम सबको बचाया। हम देखते हैं कि किस तरह खुदावन ने सारी पेशन गोई अपने शागिर्दों को सिखाया, दिखाया, बताया कि आने वाले वक्तों में जो होने वाला है अभी से तैयार हो जाओ। लेकिन वो जिस तरह पतरस मुकम्मल कहता रहा, ऐसा नहीं हो सकता, सब कुछ होगा, मैं तेरे साथ ही मरूंगा, सब कुछ ऐसा होगा, लेकिन उसने भी आके इनकार किया। और जो खुदा ने कहा था कि मुर्ग के बाग 2 दफ़ा बाग देने पर तू मेरा इनकार करेगा, 3 दफ़ा, तो ऐसा ही हुआ, सब कुछ ऐसा हुआ। और खुदा ने क्या किया, कहा कि मैं अकेला नहीं था, मेरा बाप मेरे साथ था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह हम भी दुनिया में अकेले नहीं। जब हम खुदा की मर्ज़ी को पूरा करते हैं, जब हम खुदा के पाक हुक्मों पर चलते हैं, तो खुदा हमें कभी छोड़ता नहीं, वो कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होता। वो हम सब से मोहब्बत करता है, वो हम सब से मोहब्बत करता है, लेकिन हमारे गुनाहों से नफ़रत करता है। जो हम गलत काम करते हैं, जो हमारी बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होते हैं, उन गुनाहों को करते हैं, तो खुदा हमसे क्या होता है, नाराज़ होता है। वो हमसे पाक रूह जुदा हो जाता है, क्योंकि खुदा का रूह पाक है जो आप में और मुझ में बसता है। हमें उसे रंजीदा नहीं करना, बल्कि हमें कलाम की कुदरत को लेकर, कलाम की मर्ज़ी पे चलना है, ताकि खुदा की मर्ज़ी हम सब की ज़िंदगी में पूरी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कि वही हमारी खुशी है, वही हमारा मसा है, वही हमारी कुव्वत है, वही हमें ज़ोर बख्शता है, वही हमें कुव्वत देता है, ताकि हम उसमें चलें और उसकी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करें। और फतेह याबी सिर्फ खुदा के नाम में है। और हमें खुदा ने कहा है कि हर रोज़ जिस तरह खुदावंद हमारा खुदा हमारे साथ था, हमारे यीशु के साथ था, वो हमारे साथ भी था। कलाम मुकद्दस में माकूम है कि जिस तरह खुदावंद को दुनिया में भेजा गया, तो वो मसा किए गए, उन्हें खुदा ने रूह कुदस की कुदरत से इस तरह मसा किया था कि वो मौज़ात करते थे, क्योंकि खुदावंद उनके साथ थे। और आज खुदा का कलाम मेरे और आपके साथ है। जब खुदा का कलाम मेरे और आपके पास है, तो खुदावंद हमारे साथ है, तो हम भी उसकी मर्ज़ी पे चल सकते हैं, उसी कुदरत से, उसी कुव्वत से, क्योंकि उसने कहा मैंने तुझे मसा किया है। जब उसने हमें मसा किया है, उसका मसा हमारे साथ है, हमारे अंदर है, तो हम भी खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं, हम भी उसकी मर्ज़ी पे चल सकते हैं, हम भी उस कामिल राह पे चल सकते हैं जो खुदावंद ने हमें सींच के दिखाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आए हम अपने हाथों को बुलंद करें और अपने सब बहन भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, कलीसियाओं के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, सब के लिए हाथ उठा के खुदा की इस कुदरत को, खुदा के इस कलाम को ले लें, ताकि हम जो पेशन गोइयाँ हुई थी सब के लिए थी, वो आज भी हो रही हैं। हमें उन पे यकीन करना और उन्हें ले लेना है। वो सिर्फ बातें नहीं, खुदावंद अपने लोगों के ज़रिए कलाम करता है, खुदावंद अपने नबियों के ज़रिए से हमसे कलाम करता है, खुदावंद अपने कलाम के ज़रिए से हमसे कलाम करता है। जब ये कलाम मेरी और आपकी ज़िंदगी में होगा, तो हम कभी पछताएंगे नहीं, हम कभी कमज़ोर होंगे नहीं, क्योंकि वो हमारे साथ है। वो हमें अपने ज़ोर से और अपनी कुदरत से भर देता है। खुदावंद जितनी भी आज कमियां कमज़ोरियां जिस्म में, खुदावंद यीशु के नाम से चली जाए। ऐ हड्डियों सुनो खुदा का कलाम, सुनो कि खुदा वाहिद खुदा है जो फरमाता है कि हमें सिर्फ उस पर तवक्कुल करनी है, उसके कलाम पर जो उसने नाज़िल करके शिफा को देता है उसको रिसीव करना है। आज हर घर के खित्ते भरे रहें, बीमारियां, लानते, कमज़ोरियां, कमियां, किसी तरह की भी वो हमारा पोषण नहीं, क्योंकि खुदा ने हमें कुदरत से भरा है, अपने कलाम से भरा है। तो जब हम ये कलाम अपनी ज़िंदगी में लेंगे, तो हम फतेहयाब होंगे। फतेहयाबी ही हमारा सही मकाम है, हमें इसमें ही चलना है, क्योंकि हमारे खुदा ने मौत पे फतह पाकर हमें ज़िंदगी बख्शी है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन सबके साथ हो, तमाम घरों में खुदावन जी जो भी कमियां हैं आज
यीशु के नाम से जाएं। खुदावन सब को बरकत दे, सब के साथ हो। ये सब कुछ मांगा और पाया है अपने बाप के जिंदा जलाली यीशु नाम से, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदावन खुदा के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।